I'm asking you. Was the meeting not visible to you? Ma'am, it was showing not scheduled. It is a recurring meeting. How it is not showing on schedule? Okay, let me check. I will check that. Okay. So no issues. Again, I will not waste too much time. I will start my class. Okay. So let's start our class here. We were doing this revision for that is matter around us pure. Okay. So in that up to types of colloids we have reached. Isn't that we have reached up to types of colloids? Isn't that? So first we were seeing the types of colloids, and on that particular day we have already seen the aerosol. We have seen the type aerosol types of colloid. In that types of colloid we have seen what? एरोसोल दैट वन ऑफ द टाइप ऑफ एरोसोल दैट इट इज क्या था उसमें क्या एग्जांपल दिया था मैंने व्हाट एग्जांपल आई हैव shown to you what example I have told you on that day can anybody tell me what example we had discussed in aerosol Good morning, ma'am. good morning can anybody tell me what example we discussed in aerosol on that particular day Pari Pari, I'm talking to you. Bhavik? No. Bhumi? When teacher is asking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Bhavik, tell me. What is a dispersed phase and what is a dispersion medium? What do you understand by dispersed phase and what is a dispersion medium? Ma'am, I'm not remembering. Why? Second time revision is going on, isn't that? Yes, ma'am. Bhumi, can you tell me what is a dispersed phase and what is a dispersion medium? No, ma'am. So I am going on explaining again and you people are forgetting again and again. So what is the use? Harit, yes, good boy. Tell me. Harit, tell me you can unmute yourself. Ma'am, it is solvent like substance Yes, yes. in which, ma'am, it is solvent like substance in which this first phase is added. द किसी भी मिक्सचर का जो किसी भी कोलॉइड का जो सोल्यूट लाइक कंपोनेंट रहेगा उसको हम डिस्पर्स फेज बोलेंगे और कोलॉइड का जो सॉल्वेंट टाइप बिहेविंग कंपोनेंट है उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं ठीक है समझ में आया द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज द सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन मीडियम ओके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का डिफरेंस समझ में आया अगेन the solute like component is called as dispersed phase the solvent like component is called as dispersion medium okay अब आपको ये तो पता चल गया कि हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम किसको बोलेंगे जो सोल्यूट के जैसा दिखता है काम करेगा वो डिस्पर्स फेज है जो सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा वो डिस्पर्शन मीडियम है लेकिन क्या डू यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे पता लगाओगे कि ये सोल्यूट है कि ये सॉल्वेंट है कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट इज अ सोल्यूट और इट इज अ सॉल्वेंट More quantity, less Ma'am, by quantity. the saying of quantity. more quantity is of solvent less quantity is of solute जो ज्यादा है वो solvent है जो कम है वो क्या है solute है same is the case of colloid also यानी कि जो ज्यादा रहेगा वो आपका dispersion medium है और जो कम है वो आपका dispersed phase है on that basis only we had discussed the example of cloud I gave you the example of cloud and that cloud what was the dispersed phase and dispersion medium Divya what was the dispersed phase and dispersion medium in that? It's Divya or Divya? 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 Why so slow reply? Can't you tell me yes or no? नहीं आता तो नहीं आता. I will just explain it again. What's Garvik?
गार्विक, गौरव, काव्या, काव्या, Ma'am. can you tell me what is the dispersed phase and dispersion medium in cloud? Ma'am, don't know. अच्छा ये बताओ क्लाउड में होता क्या? क्लाउड कहाँ पे? क्लाउड में क्या रहता है? क्लाउड क्या चीज है? व्हाट इज अ क्लाउड? से रहता मैम स्टीम का इट्स अ वेपर, वेपर है ना, वो वेपर है। वेपर क्या है? पानी है कि नहीं? यस मैम गैसेस फॉर्म है, यानी क्लाउड क्या है आपका? वाटर है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, वो वाटर है। भले ही वो गैसेस फॉर्म का होगा तो वो भी तो भी चलेगा, वो गैसेस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन वो है तो वो पानी ही ना, वाटर ही है ना वो। यस मैम तो वाटर, लिक्विड, ओके। पानी जब क्लाउड जो रहता है वो एक्चुअली इट इज वाटर ओनली, ओके। तो अब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है बेटा? वेयर इट इज, व्हाट मैम वेयर दिस क्लाउड इज, क्लाउड वेयर दिस क्लाउड इज प्रेजेंट? क्लाउड कैसे बनता है? हरे गुड, यस मैम बस टेल मी वेयर इट इज प्रेजेंट? मैम इन स्काई स्काई, स्काई में क्या रहता है बेटा? स्काई में हवा रहती है ना, बहुत सारी हवा रहती है ना, यानी क्लाउड यस मैम हवा में है ना। तो ज्यादा कौन हुआ, हवा यस की मैम पानी? मैम एयर एयर। तो डिस्पर्शन मीडियम कौन होगा? एयर एयर। डिस्पर्स फेस कौन है? मैम वाटर That is only I am asking. Dispersed phase is liquid and the dispersion medium is air. और Solid. ये पहला टाइप ऑफ कोलॉइड है, इसको हम बोलते हैं लिक्विड एरोसोल। इसको ये पहला टाइप ऑफ कोलॉइड है, दैट इज व्हाट? लिक्विड एरोसोल। समझ में आ गया लिक्विड एरोसोल? लिक्विड एरोसोल में क्या होगा? यस Yes, ma'am. Dispersed phase is liquid, dispersion medium is gas. Okay, clear? ये आपको मैंने एरोसोल का एग्जांपल दिया था। दूसरा, you are coming, you are driving scooty, all of you are driving scooty, you are driving and coming to going to Raipur side, and so much as soon as you started the scooty, so much dust, धूल is coming out. Okay, तो वो धूल होता है कैसे क्रिएट होता है? मिट्टी से, है ना। वो धूल किससे क्रिएट होता है? मिट्टी से क्रिएट होता है। अब ये धूल उड़ रही है, ये धूल उड़ के कहाँ जा रही है? हवा में जा रही है। Isn't that? That means जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट किया, वो जो मिट्टी है वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ के हवा में चले गए, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है? डस्ट क्रिएट कर रहा है। अब आप खुद ही सोचो, इस डस्ट में ज्यादा कौन है और कम कौन है? Who is more in dust? Who is more in dust? भूमि, वो वहां जाने की बात कर। भूमि, मैम सेंड Air. Who is more in dust? एयर और हवा ज्यादा है कि मिट्टी ज्यादा है? मैम मिट्टी मिट्टी ज्यादा रहती है। Ma'am, air. एयर इज मोर। धूल में मिट्टी आपको स्प्रेड रहती है, लेकिन वो कहाँ रहती है? हवा में रहती है। हवा ज्यादा है तभी तो धूल को अपने अंदर कैरी उड़ा के ले जा रहा है। नहीं तो हवा कम होती तो मिट्टी तो वही गिर जाता, थोड़ा सा दूर ट्रेवल करता गिर जाता। मैं तो अपने टेस्ट ड्राइव भी ले लिया। Please keep your background clear. I will mute everyone. I want a mutual discussion. That's why I have not kept you people all. Okay? So dust में क्या होता है? जो मिट्टी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो थोड़े कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू एयर। तो जो डिस्पर्स्ड फेस है वो मिट्टी रहती है, और डिस्पर्शन मीडियम जो रहता है वो एयर। solid है, यानी dispersed phase is solid and dispersion medium is gas। और इस कुत्ते दूर चल रहे हम लोग बोलेंगे another वाह। type of aerosol, बाकी साइकिल ऐसे पकड़ के लगे थी। solid aerosol। This is another type of colloid that is called as solid aerosol। वाह। ठीक है, तो समझ में आया? दो होते हैं, लिक्विड एरोसोल और एक सॉलिड एरोसोल। लिक्विड एरोसोल में लिक्विड डिस्पर्स फेज रहेगा, और गैस सॉलिड एरोसोल में आपका सॉलिड डिस्पर्स फेज रहेगा। इज इट क्लियर? So when if you are getting this question,
If you are getting this question like that, Neeti, please keep your background noise less. Neeti, I'm talking to you, beta. देखो आगे से ध्यान से So what it is that आपको अगर two types of colloid aerosol अगर कोई बोलता है कि differentiate between the two types of aerosol तो आप यही बताओगे कि on the basis of dispersed phase and dispersion medium there are two types of aerosol. In one type of aerosol the solid is a dispersed phase and the liquid is a air is a dispersion medium. Example dust. Another type of aerosol is air in which the liquid is a dispersion medium. This liquid is a dispersed phase and air is a dispersion medium like your cloud. दो टाइप की एरोसोल होंगे, एक में आपका सॉलिड डिस्पर्स फेज है और दूसरे में लिक्विड डिस्पर्स फेज है, लेकिन दोनों में डिस्पर्शन मीडियम क्या रहेगा, गैस रहेगा. और अगर सॉलिड डिस्पर्स फेज है उसका एग्जांपल आप डस्ट दे सकते हो, और अगर लिक्विड डिस्पर्स फेज का काम कर रहा है इन गैस तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हो क्लाउड का. इस क्लाउड के अलावा अब आप फॉग का भी एग्जांपल दे सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ओके, सो व्हेन आई एम यू आर यूजिंग सो व्हाट अभी मैंने लेके आया और अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है, वी आर कंटिन्यूअसली वॉशिंग आवर मींस मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम वी आर वॉशिंग hands with suppose I am using soap to wash my hand, I applied soap, wet my hand, applied soap, what happened, lather comes. क्या आता है, लैदर आने लगता है, झाग आने लगता है, isn't that, है कि नहीं, फोम आता है. तो वो क्यों आता है, can you tell me what can be the dispersed phase and the dispersion medium in that? डिस्पर्शन फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा. मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने हाथ धोना चालू किया, हाथ पानी डाला, सोप लगाया, ऐसे ऐसे किया, तब जाके मेरे हाथ रब किया, तब जाके मेरे हाथ में क्या गया, सोप के जो सोप सड बोलते हैं उसको, या फिर आप वो बबल्स भी बोल सकते हो. तो ये क्या, ये बबल्स क्यों बने मेरे हाथ में, when I was washing the hands with the soap. तो आप खुद ही सोचो इसमें. Kavya, are you there or not? Yes, ma'am. Yes, Kavya, tell me, according to you, what can be the dispersed phase and dispersion medium in that particular soap bubbles? What can be the Ma'am, yeah? ma'am, dispersed phase soap and the bubbles is dispersed media. बबल्स कैसे बनता है बेटा, बबल्स का ही तो मैंने पूछा है ना. वो सोप बबल्स के अंदर डिस्पर्स फेस कौन है, डिस्पर्शन मीडियम कौन है, मैंने ये पूछा है आपसे. वो जो सोप्स के बबल्स क्रिएट हुए हैं ना हाथ में, व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इन दैट पर्टिकुलर सोप बबल्स, कैन यू टेल मी? Ma'am, dispersed media. डिस्पर्स्ड फेज जो ज्यादा होता है वो कौन होता है, ज्यादा, Dispersed phase. डिस्पर्शन मीडियम. Dispersed phase. मीडियम जो रहता है वो ज्यादा रहता है और जो डिस्पर्स फेज रहता है वो कम. ठीक है, समझ में आया? इज इट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. कौन ज्यादा रहेगा? Yes, ma'am. Who will be more? Dispersed medium. डिस्पर्शन मीडियम. Dispersed medium. और कम कौन रहेगा? Dispersed phase. अब आपका सोप बबल बना, सो आपने पानी लगा के हाथ धोया, सोप बबल्स क्रिएट हुए, तो अब उस सोप बबल के अंदर ज्यादा कौन है और कम कौन है, पहले ये बताओ. Ma'am, soap bubbles dispersed medium है. बबल के अंदर ही तो पूछ रही हूँ बाबा, व्हाट इज दैट बबल. वो बबल कैसे क्रिएट हुआ, आप, मैंने क्या बोला, पानी लगाया आपने, सोप का तो छोड़ो, आपने पानी लगाया, Yes, ma'am. पानी और सोप को मिक्स करें इसी कारण. पानी लगाया क्रिएट हुआ है कि नहीं, यानी पानी ज्यादा था, आप कंटिन्यूअसली हाथ में Ma'am. वेट, अपना हाथ वेट किया तब जाके बना, और बबल्स तब बने हैं कि नहीं. और आपने कैसे किया, ऐसे ऐसे किए, ऐसे ऐसे रब करते हो हाथ, ऐसे रब करने से क्या होता है, एयर प्रोड्यूस होता है कि नहीं, एयर होगा और एयर निकलेगा और वो पानी के बीच में जाएगा और क्या पॉप अप करके आएगा, और वो गैस, वो एयर क्या है, गैस तो है, तो वो क्या करेगा, बबल्स के फॉर्म में दिखाई देगा. तो जाहिर सी बात है कि वो जो सोप सड होता है, सोप सड यानी कि वो जो झाग निकलता है सोप से, वो जो है उसमें क्या होता है, लिक्विड जो रहता है वो आपका डिस्पर्शन
मीडियम रहता है और जो बबल्स यानी कि जो गैस रहते हैं जिनके कारण बबल्स बन रहे हैं वो क्या रहेगा, डिस्पर्स फेस। क्लियर है ये एग्जांपल Disperse सबको? phase. समझ में आए एग्जांपल? Yes, ma'am. ये इस तरीके के कोलॉइड को हम लोग बोलते हैं फोम। दिस टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड एज फोम। ओके, इस टाइप के हम कोलॉइड को क्या बोलेंगे, फोम। ठीक है, समझ में आया? Foam. ओके, नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड, द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड, सपोज आई एम आस्किंग अबाउट मिल्क। मिल्क जो रहता है, ओके, मिल्क, आई एम टॉकिंग अबाउट मिल्क। ओके, कैन एनीबडी टेल मी मिल्क में ज्यादा कौन रहता है, कम कौन रहता है, यानी कि डिस्पर्स फेस कौन है एंड डिस्पर्शन मीडियम कौन है? Who is a disperse phase and who is a dispersion medium in the milk? Can anybody tell me? Why there is so much thinking? Huh? Can anybody tell me what is a foam? Sorry, milk. Milk में disperse phase कौन है, dispersion medium कौन है? कोई बता सकता है? What you are thinking so much? Yes, 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 yes. So many hands are raised. Good, good, good. Okay. बेटा आपको मैंने ओके अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी। ओके, साक्षी, गर्ल साइड, वेरी गुड, गर्ल साइड आई गॉट। साक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर। Ma'am, dispersed phase is water. Dispersed phase is water and dispersion medium is Milk. milk. That means liquefied fat. ओके, जो मिल्क रहता है Yes, ma'am. उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो रहता है वो वाटर रहेगा और डिस्पर्शन मीडियम जो रहेगा लिक्विफाइड फैट, यानी कि दोनों के दोनों लिक्विड है ना। लिक्विफाइड फैट बोला मैंने, फैट भी कौन सा ऐसा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये दोनों के दोनों है क्या, एक्चुअली लिक्विड है कि नहीं? तो इफ बोथ आर लिक्विड देन दैट टाइप ऑफ कोलॉइड इज कॉल्ड एज व्हाट, इमल्शन। अगर कोई कोलॉइड में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों लिक्विड होंगे तो उस टाइप ऑफ कोलॉइड को क्या बोला जाएगा, इमल्शन। ठीक है, सो अभी कितने टाइप ऑफ कोलॉइड टोटल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलॉइड आई डिस्कस, 2 टाइप्स ऑफ एरोसोल, फोम एंड 1 इमल्शन। ठीक है, अब इमल्शन डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड हम लेते हैं रूबी। रूबी एक पत्थर स्टोन सुने हो, रूबी स्टोन, लाल कलर का पत्थर रहता है। हैव यू हर्ड? रूबी इज अ जेमस्टोन। जेमस्टोन Yes, ma'am. लाल कलर का पत्थर रहता है ना। तो उस लाल कलर के पत्थर को अगर आप देखोगे तो क्या होता है उस लाल कलर के पत्थर में, आप ये चीज आपको पता नहीं होगी शायद। ओके, सो उसमें आप देखोगे कि आपको लाल कलर का दिखता है। वो एक्चुअली लाल कलर का इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें होता क्या है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का फ्रेमवर्क, क्रोमियम एक एलिमेंट है और उसके अंदर आयरन रहता है। तो आयरन का छोटे छोटे पार्टिकल्स स्प्रेड रहते हैं। तो होता क्या है कि आयरन और क्रोमियम 2 चीजें है ना। तो आयरन और क्रोमियम 2 चीजें, दोनों ही सॉलिड है, यानी डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो गया, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो गया। तो ये क्या हो गया, इस टाइप ऑफ कोलॉइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों के दोनों सॉलिड हो, हम उस पर्टिकुलर कोलॉइड को बोलते हैं सॉलिड सोल। ठीक है, और एग्जांपल में आपके जेमस्टोन्स, जो जेमस्टोन में सबसे अच्छा एग्जांपल है रूबी का, क्योंकि रूबी में हमको ये आसानी से पता चल जाता है कि डिस्पर्स फेज कौन है और डिस्पर्शन आप देख के नहीं बता सकते, आपको स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, यू कांट सिंपली सी एनी जेमस्टोन एंड यू कैन सिंपली टेल हाँ ये है। ओके, जिसको उस चीज का नॉलेज होगा वही बता सकता है। ओके, so here ruby is an example of solid soul. This is the 5th type of colloid. Okay, अब आगे बढ़ने से पहले I will just ask you revise 5 colloids के बारे में मुझे आप
Who is this? Who is this? Left the class. I am going to log the meeting. Now अब ये 5 टाइप्स के कोलाइड को आपको रिवाइज करना है. ओके, सो आप मुझे पहले 5 टाइप्स ऑफ कोलाइड्स के बारे में बताइए, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलाइड्स. मौली, are you there? No. Meeti, after discussion. Yes, ma'am. Yes. Okay, good. At least responded. Okay, now tell me all the 5 types of colloid which we had discussed now, starting from the aerosol. आप बता सकते हो? No, ma'am. I joined the class late. Okay. Prakhar? No. Priyansh? Yes, ma'am. Yeah, okay, good. Smoke is which type of colloid? अभी तक से जो 5 types of colloids में डिस्कस. मैम लिक्विड और एरोसोल. लिक्विड एरोसोल होगा. स्मोक कैसे बनता है बेटा, बताओ तो पहले. How does this smoke is formed? मैम गैस इज डिस्पर्स्ड मीडियम. कैसे क्रिएट होता है, कैसे बनाते हो स्मोक, ये पहले बताइए. आप पहले बताइए. मैम जब कुछ चीज जलाते हैं. हाँ, कैसे? मैम जब कोई चीज जलाते हैं. जब कोई चीज जलाते हैं ना, तो जलाने से क्या होता है? कचरा निकल जलता है तो वाइट आपका एशेस प्रोड्यूस होते हैं, है कि नहीं? यस मैम. एशेस प्रोड्यूस होते हैं. वो एशेस कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं कि लिक्विड रहते हैं कि गैस रहते हैं? सॉलिड रहते हैं ना. और ये एशेस कहाँ जाते हैं? हवा में जाते हैं, है कि नहीं? यस मैम. यानी कि डिस्पर्स. कौन है यहाँ पे डिस्पर्स फेज? Who is the dispersed phase here? Ashes. बेटा डिस्पर्स फेज ज्यादा रहता है कि कम रहता है, ये बताइए. कम रहता है ना डिस्पर्स, है ना. तो आपने कचरा जलाया तो कचरा में से जो एशेस रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं कि हवा ज्यादा रहती है? मैम हवा ज्यादा रहती है ना. तो हवा क्या हुआ आपका? डिस्पर्स्ड मीडियम. डिस्पर्शन मीडियम. और वो जो एश निकला है, कचरा निकला है, वो क्या है? Dispersed phase. Yes. So in the smoke, the dispersed phase is solid and the dispersion medium is gas. And this type of colloid is called as. And what is this type of colloid called? इस type of colloid को हम क्या बोलते हैं? Liquid aerosol. Solid aerosol. Okay. Liquid aerosol. सॉलिड एरोसोल बोलोगे बेटा, क्योंकि डिस्पर्स फेज कौन है? सॉलिड है ना. और अगर डिस्पर्स फेज लिक्विड होगा तब आप जाके उसको क्या बोलोगे? लिक्विड एरोसोल बोलेंगे. सब ठीक है. आप अभी सपोज नहा धो के तैयार हो रहे, यू आर यूजिंग अ परफ्यूम स्प्रे, यू आर यूजिंग, इजंट दैट स्प्रे यूज करते तो क्या करते हो? वो स्प्रे को करोगे तो क्या होता है? लिक्विड ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स कहाँ चले जाते हैं? एयर में जाते हैं, है कि नहीं? तभी तो आपका क्या परफ्यूम का स्मेल आता है कि नहीं? तो वो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स एयर में स्प्रेड हो गए. वो एग्जांपल हो जाएगा किसका? लिक्विड एरोसोल का. समझ में आया? जब सॉलिड एरोसोल बोलोगे तो सॉलिड फैलेगा गैस में, और अगर लिक्विड एरोसोल बोलोगे तो लिक्विड फैलेगा गैस में. समझ में आया? ओके, आई एम नॉट गिविंग टू मच स्ट्रेस एनी मोर हियर इन दिस. सो नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग. ओके, बटर और चीज. अच्छा, पनीर तो सब खाते हैं, है कि नहीं? किसी का फेवरेट डिश भी होगा पनीर, isn't that? So all of you are eating, consuming पनीर. वो पनीर में आप देखोगे तो पनीर कैसा रहता है? It is very hard like a stone or it is soft? Is it soft or it is hard? Vanshika?
मैम सॉफ्ट। सॉफ्ट होता है ना, ठीक है। पनीर जो रहता है वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है ना, तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। अब पनीर को अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा कंप्रेस करेंगे, पनीर को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं तो क्या निकलता है, थोड़ा सा पानी निकलता है कि नहीं निकलता है? निकलता है ना, हल्का हल्का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यस मैम। और वो पनीर में सॉलिड जो व्हाइट जो मतलब सॉलिडिफाइड फैट रहता है वो ज्यादा दिखता है आपको। और why Raghav is entering so late in the class? तन्मय, ओके। सो वो पनीर में जो रहता है वाटर जो रहता है वो कम हो गया, और वो जो सॉलिड वाला फैट पार्ट है वो ज्यादा हो गया, है कि नहीं? तो डिस्पर्स फेज कौन हुआ वंशिका? इन व्हाट विल बी डिस्पर्स्ड फेज इन चीज? डिस्पर्स फेज इन चीज, वो पनीर में डिस्पर्स फेज कौन है वंशिका? Vanshika, I'm talking to you. What is the dispersed phase in that cheese? मिल्क। Dispersed phase is the liquid or the solid one? Liquid. Liquid is the dispersed phase. Okay, correct. And dispersion medium is the solid one. Solid. Okay, तो जब Solid. colloid में लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज का काम करे और सॉलिड जो है वो डिस्पर्शन मीडियम का काम करे, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड इमल्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड इमल्शन भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? Solid emulsion. ठीक, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आ रहा है एग्जांपल। ओके, अब आप स्पॉन्ज यूज करते हो। स्पॉन्ज आपके सीट, गाड़ी की सीट्स वगैरह में लगता है, स्पॉन्ज लगता है। इवन दिस डस्टर इज हैविंग अ स्पॉन्ज। तो इस स्पॉन्ज में होता क्या है? स्पॉन्ज को ऐसे हम लोग दबाते दबता जाता है कि नहीं? दबाते तो दबता जाता है। ये स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे माइन्यूट। बेटा अब मैं लॉक कर दूंगी मीटिंग तक, जस्ट नाउ इट इज राघव, ऑल दिस chat I can see. That's why you were just calling me to unlock the meeting or what? Okay, I will stop I will discuss this example and I will stop the class. तो ये स्पॉन्ज जो होता है, वो स्पॉन्ज में क्या होता है? स्पॉन्ज जो रहता है, स्पॉन्ज के अंदर माइन्यूट पार्टिकल्स रहता है कि नहीं? स्पॉन्ज में जो कैसे रहते हैं पार्टिकल्स, कैसे रहते हैं? माइन्यूट छोटे छोटे छेद रहते हैं। उस छेद में क्या रहता है? हवा जाती है, और उस हवा जाने के कारण आप उस स्पॉन्ज को आप क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो, है कि नहीं? तो आप खुद ही सोच के बताइए कि उस स्पॉन्ज के अंदर डिस्पर्स फेज कौन होगा और डिस्पर्शन मीडियम कौन होगा? ओके, उस पर्टिकुलर स्पॉन्ज के अंदर डिस्पर्स फेज कौन होगा और डिस्पर्शन मीडियम कौन होगा? एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल Ma'am, disperse. Ma'am, dispersed medium. Ma'am, dispersed phase. डिस्पर्स फेज कौन है? Foam. Sponge particle. स्पॉन्ज के अंदर सॉलिड जो है वो डिस्पर्स फेज है कि डिस्पर्शन मीडियम है? Ma'am, Disperse layer. Medium. डिस्पर्शन phase. और वो जो एयर डिस्पर्स फेज है। ओके, क्लियर? वो medium है. एयर जो होगा डिस्पर्स फेज होगा बेटा, एयर जो होगा वो डिस्पर्स फेज होगा, और जो सॉलिड होगा वो डिस्पर्शन मीडियम होगा। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मैं इसी टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को फिर से रिवाइज करूंगी। एज यू आर टेलिंग दैट मैडम टाइम ओवर हो गया, आई कैन सी दैट इट इज 9:40 going to be. Okay, so I am ending my class here. Okay, clear? So I am ending my class here. If anybody having any issue, tell me now only. And from next time onwards, I will log the meeting after 15 minutes. मैम, ये स्पॉन्ज आप क्या चीज का एग्जांपल बताए हो? Foam. अभी उसको फिर से डिस्कस करूंगा। Yes, ma'am. Discuss it again in the next class. Okay, clear? Yes, ma'am. Okay.